हम सब भी बीमार हो गए हैं। अब फैमिलीज का ये क्वेश्चन है कि हम क्या बीमार हुए, ठीक है, कि पेशेंट बीमार है, हम क्या बीमार हुए हैं। तो यहाँ बैठ के हमें एज अ फैमिली समझना पड़ेगा कि अगर हम ब्रेन के हॉस्पिटल में हैं, हमारी बीमारी किसी, आपको लगता है कि किसी अंग में नहीं दिख रही है, पर ब्रेन हमारे शरीर का एक फिजिकल अंग है, ठीक है। और उसके लक्षण कहाँ पे दिखते हैं? हमारे बिहेवियर्स में। जो अगर हमारे पेशेंट को हम उसके सर्टेन बिहेवियर्स की वजह से, चाहे वो एडिक्शन है चाहे वो साइकेट्रिक है, हम एक हॉस्पिटल में लेके आए हैं, तो हम इन मीटिंग्स, इस प्लेटफॉर्म में बैठ के अपने वो बिहेवियर्स को समझेंगे कि पेशेंट के साथ रह रहे के हमारे अंदर कौन से अनहेल्दी बिहेवियर्स, अनहेल्दी पैटर्न्स आ गए हैं जो कि हमारी बीमारी बन चुके हैं, ठीक है। हम यहाँ पे खाली पेशेंट को नहीं ट्रीट कर रहे हैं, आप लोगों को साथ बैठ के अपनी बीमारी, अपने उन बिहेवियर्स को रिकॉग्नाइज, पहचानना पड़ेगा। उसके बगैर हमारी गाड़ी आगे नहीं चलेगी, ये ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं होएगा, ठीक है ना। इस ट्रीटमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਨੁਮੈਮ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਦਤ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਆਉਣੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। देखो, हम बार बार डिजीज बोलते हैं, बीमारी बोलते हैं। डिजीज क्या है? डिस ईज, कि हमारे को जो ईज है, जो हमारा कंफर्ट है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। सबसे पहले हमारे पेशेंट का, उसकी बीमारी की वजह से, और फिर उसके जो बिहेवियर्स आए उसकी वजह से हमारे घर में हमारा वो कंफर्ट खत्म हो गया है। चाहे वो फाइनेंशियल रूप में है, चाहे वो फिजिकली है, चाहे हमारे घर में लड़ाई झगड़ा है, कलह क्लेश है, चाहे हमारे पेशेंट की फंक्शनैलिटी है कि पेशेंट अपनी जिस भी एज और स्टेज में है, क्या वो अपनी उस एज और स्टेज के अनुरूप काम कर पा रहा है, और उसका असर हमारे ऊपर क्या हो रहा है। अगर हमारे पेशेंट की फंक्शनैलिटी इफेक्ट होती है तो कहीं ना कहीं हम भी इफेक्ट होते हैं, हम भी उदास होते हैं, हम भी परेशानी में रहते हैं, और हमारे भी सेम टू सेम वो ही पैटर्न्स चलते हैं। हम कहते हैं ये गुस्सा करता है, तो हम यहाँ बैठ के देखें कि हम कितना गुस्सा करते हैं, है ना। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮੈਮ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਾਇਓ, ਸਾਈਕੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ। ਬਾਇਓ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਾਈਕੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨੁਮੈਮ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਬਾਇਓ, ਸਾਈਕੋ, ਸੋਸ਼ਲ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਭ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। पर एहसास नहीं हो रहा होता ਪਰ अमन। ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ हाँ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ हाँ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। हाँ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਡਰੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰਟ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਪੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਈਕੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਇਓ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਉਵੇਂ ਵੀਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ।
उसी तरह साइको, जैसे पेशेंट के बिहेवियर्स, बीमार बिहेवियर्स हम कहते हैं, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, झूठ, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, हर वक्त कोई लड़ाई झगड़ा मचा के रखना, कलह क्लेश मचा के रखना। आप देखो कहीं ना कहीं क्या आपके बिहेवियर्स वो वाले नहीं हो गए हैं? हम अपने पेशेंट की इज्जत बचाने के लिए, उसको प्रॉब्लम से बचाने के लिए हर वक्त झूठ बोल रहे होते हैं, कभी दुनिया से, कभी परिवार वालों से, कभी उसके वर्क प्लेस पे, कभी उसके स्कूल कॉलेज में। हम वही सेम बिहेवियर्स कर रहे होते हैं। हमारा जो एडिक्शन का पेशेंट है, अगर उसको अपने सब्सटेंस को छोड़ने में डर लगता है, उसको लगता है कि मैं इसके बगैर नहीं जी सकता, उसी तरह हम भी तो हर वक्त डर के माहौल में ही हैं कि इस बच्चे को ना कुछ हो जाए। ठीक है, हमें भी हर वक्त यही परेशानी रहती है कि चिंता, फिक्र, डर हमारे कांस्टेंट कंपेनियंस बन गए हैं। पर सबसे ज़्यादा दुख की बात ये होती है कि बहुत साल हमने इन बिहेवियर्स को ना नॉर्मलाइज किया होता है अपने घरों में। हमें लगता है कि शायद ये ऐसे ही होता है, शायद नॉर्मल घरों में ऐसे ही होता है। नहीं, ऐसे नहीं होता। यहाँ बैठ के हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो घर है, परिवार है, हाउस होल्ड है, वो एक डिसफंक्शनल हाउस होल्ड है, जिसके अंदर हम भी साथ साथ में अपने पेशेंट के बीमार होते जा रही हैं। ये जो बिहेवियर्स है ना, जो बात बात पे गुस्सा कर लेना, बात बात पे हम, आप देखो कितना एडजस्ट कर रहे हो आप अपने पेशेंट के साथ। चलो पेशेंट जो यहाँ बैठा है उसके साथ तो है ही है, आप अपने घरों में देख लो, अपने आसपास देख लो, कितना एडजस्ट करी जाते हैं। हम कभी अपनी बात खुल के बोल ही नहीं पाते हैं, हम करेक्ट बात करेक्ट तरीके से बोलना नहीं हमें आता है। ठीक है ना, तो हम एडजस्ट कर करके एक दिन बीमार हो जाते हैं।